So let's begin with the program. So this program is based on constructor. We know that what is constructor. Let's have a recap. Constructor is nothing but it is used to initialize the object of a class, right? If you want to initialize a variable of an object, then in that case you use a constructor. Constructor, the first rule, constructor name should be same name as that of a class name. When we want to initialize an object of a class, in that case we use a constructor. सो कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहेगा जो क्लास का नाम है. कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में ही लिखा जाएगा. ठीक है. कंस्ट्रक्टर के पास स्टैटिक आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल आल्सो. सो दीज आर some of the rules for writing the program on constructor. Let's begin with the one program. See, here I have written one program, class circle. Now here you can see that I have mentioned here private. Now here explicitly I have mentioned that my specifier is a private, so of course it's a private. Then there are the different data members I have mentioned, X, Y, R, A, circum. We are going to calculate area and the circumference of a circle. These are the two coordinates X and Y whose data type is integer. So these are the data members which I have declared under the private specifier. Now, public, after that I have used the circle. Here you can see that this circle is nothing but it's the same name as that of a class name. So here you can see that this circle is a constructor. This circle is a constructor. Now it's a default constructor. Why? Because I didn't pass any parameter in that case. So it's a default constructor in which there is a no parameter has been passed. So here you can see that I didn't mention any body in this thing. देखो constructor open किया है. यहाँ पे constructor brace bracket open, then constructor brace bracket close. Under the constructor I didn't written anything. I didn't mention anything. So here the first constructor is closed. The second constructor I have written, this is a parameter constructor. Why? Because the class name circle, constructor का नाम भी circle. I pass three parameters: float p, float q, float radius. So these are the three different parameters I passed into the circle, that is a constructor. So this is called as a parameterized constructor. Now here you can see that I have mentioned three different data members, X, Y, R. I supposed to calculate A and circum. So here you can see that. So I have assigned the value. P ka value is assigned to the data member X. Q ka value is assigned to the Y. And RAD, that is the another value, it is assigned to the radius. So these are the three different parameters which I pass, and it is assigned to these three different data members of a class. ठीक है, लेकिन class का नाम वही है जो constructor का है. So now let's begin. Next, I have assigned a function. I have used a one function assign in which I am going to enter the X ka value, Y ka value and R ka value. So here you can see that I have entered the value for X, Y and radius. So C in X, C in Y, C in RAD. Now all these things can be written under the one sentence also. Then the function close. Now I have to calculate the area and the circumference. That is, I entered a formula. So I've used another function, void area. Function begins. Then A is equal to 3.14 into R because I have mentioned here A. So I have written here A. Next, void circ. This is my another function which will calculate this circumference of a circle. So then function open. Circum is equal to 2 pi R. I have calculated. Then the function close. One more function I have used, that is print. Now, whatever I entered, whatever I calculated, I need to print that value. So here I'll print count X, Y, radius. So then count area and then count circumference. So I'm going to display X, Y, R ka value, area and circumference. Okay, so all these things comes under a one function, that is print function. Okay, now function बंद हो गया, class close हो गया. So all this stuff happens under the inside the class. ये सारी किसके अंदर चल रही है? Data member and the member functions are accessed inside the class when the data member are declared under the private access specifier. ये सारी चीजें कब चलती है अंदर? जब भी एक्सेस स्पेसिफायर एक्सप्लिसिटली आप मेंशन करते हो कि वो प्राइवेट है, तभी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सब कुछ क्लास के अंदर चलता है. ठीक है. नाउ we have to call these member functions by using an object of a class. Now let's begin. अब क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? Circle. Then I have created two objects, C1
This C1 is an object of a class that is variable. Simple term में if I talk, it's a variable of an object of a circle. Object of an circle. Circle क्या है यहाँ पे? Class है. लेकिन circle यहाँ पे क्या है? Again constructor भी है. So this first C1, that is the first object C1 of a class circle, indicates that it is nothing but a, it invokes a constructor. It invokes a constructor. आपको call करने की जरूरत नहीं है. Automatically it will call the constructor. Then second object C2 I have used, as C2 is a parameterized type of constructor. So how many parameters I pass? I pass 3 parameters, 1, 2 and 3. So 3 parameters, that means 3 values are required. So I have mentioned here float. So I pass the value 1.1, 2.1 and 3.1. So these are the 3 values which are assigned to the x, y and r. X is a 1.1, y is a 1.2 or 2.1 and radius is a 3.1. Now this C2, that is this constructor will get automatically. That means you are not going to call the second parameterized constructor, it will call automatically. Why? Because C2 लिखा है, C2 object है, object किसका है? Circle का है. Circle क्या है यहाँ पे? Constructor है. और कितने पैरामीटर है? तो मतलब कंपाइलर को भी समझ में आएगा कि ये मैंने ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है. So it will come here and it will assign this value to this coordinates. ठीक है ना? Now I want to enter the value. So C1 से मैंने assign किया. उसके बाद में C1 dot assign, it will ask for value for x, y and radius. C1 dot area, it will calculate the value for area pi r square. C2 dot area किया मैंने यहाँ पे. Now अभी देखो, I'll just explain this. C1 dot circle, C1 dot area किया, it will calculate the value for area. Now C1 किसका ऑब्जेक्ट है? कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जिसमें मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं की. आई डिडंट इनिशियलाइज एनी वैल्यू. दैट मीन्स इट विल टेक विच वैल्यू? ये वाला x जो एंटर करोगे, y जो एंटर करोगे, रेडियस जो एंटर करोगे, वो वाला वैल्यू लेके इट विल कैलकुलेट द C1 डॉट एरिया. Similarly, C1 dot circum, it will calculate this value and then ठीक है कैलकुलेट करेगा. ओके, आफ्टर दैट C1 डॉट प्रिंट मैंने किया नहीं है. देन C2 डॉट एरिया. नाउ C2 डॉट एरिया जैसे ही मैंने कॉल किया, इट विल टेक अ वैल्यू C2 का एरिया इज इक्वल टू 3.14 r इंटू आर. तो वैल्यू क्या लेगा आर की? वो 3.1 लेगा. ठीक है, उसके बाद में C2 डॉट सर्कम. नाउ C2 डॉट सर्कम अगेन इट विल टेक द r का वैल्यू 3.1 एंड देन C2 डॉट प्रिंट. अब C2 डॉट जब प्रिंट मैंने किया, इन दैट केस x का कोऑर्डिनेट वो 1.1 बताएगा, y का कोऑर्डिनेट 2.1 बताएगा और एरिया और सर्कम की वैल्यू इट विल कैलकुलेट ऑन दिस रेडियस 3.1. ठीक है, तो मतलब आउटपुट में मुझे C2 के वैल्यूज प्रिंट हो गए. C1 के वैल्यू जो है मैंने प्रिंट नहीं किए है. C1 के वैल्यू को मैंने प्रिंट को कॉल ही नहीं किया है, तो C1 का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा बट कैलकुलेट होगा और एरिया और सर्कम में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, बट ये कौन सा वैल्यू लेगा? आई जस्ट वांट टू शो यू कि वैल्यू कौन सा लेगा. इट विल टेक द वैल्यू ऑफ दिस थिंग जो सी इन किया है ना तुमने, वो वाला वैल्यू वो लेगा. सो सी इन का वैल्यू x, सी इन का वैल्यू y और सी इन का वैल्यू रेडियस, वो वैल्यू वो लेके कैलकुलेट करेगा. सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू इनिशियलाइज वेरिएबल एंड व्हेन वी यूज अ इनपुट एज एन यूजर. ठीक है, अगर आपको यूजर से वैल्यू चाहिए और अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो दोनों चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ we'll move to the next thing, that is destructor. Now what is destructor? Constructor is basically used to it is used to construct the object, to initialize an object. So destructor क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में बन जाता है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का काम होता है. सो डिस्ट्रक्टर इज नथिंग बट इट विल डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कंस्ट्रक्टर. Destructor will destroy the object which is constructed by the constructor. So मतलब क्या कि जब भी कंस्ट्रक्टर कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो ऑब्जेक्ट जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना दिया, दैट ऑब्जेक्ट वो मेमोरी में जाके उसके लिए कहीं ना कहीं स्पेस मिल जाएगी अलोकेशन के लिए. ठीक है, तो और अगर आपने डिस्ट्रक्टर बना दिया तो डिस्ट्रक्टर जैसे ही बन गया तो जो भी अगर आपका विजिबिलिटी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चला गया, मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका विजिबिलिटी एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब है ही नहीं वो अभी, तो इन दैट केस डिस्ट्रक्टर वो मेमोरी स्पेस को रिलीज कर देगा. जो ऑब्जेक्ट वो मेमोरी स्पेस में रखा गया था वो मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगी, मतलब मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगी. उसका काम कौन करता है? डिस्ट्रक्टर करता है.
So destructor basically destroys the object, constructor constructs the object. Now दोनों में difference क्या है? See, it is a special member function of a class which is used to destroy the memory of object. जैसे अभी बताया मैंने कि constructor construct the object, उसको memory में एक स्पेस मिल जाएगी, अलोकेशन मिल जाएगी जहाँ पे उसका वैल्यू होगा और वो ऑब्जेक्ट को असाइन किया जाएगा. लेकिन इमीडिएटली अगर आपने डिस्ट्रक्टर को इन्वोक किया तो वो इमीडिएटली उसको रिलीज कर देगा, मेमोरी स्पेस रिलीज कर दे ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर ने बनाया था. तो कभी जब भी उसका विजिबिलिटी का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. विजिबिलिटी का एग्जिस्टेंस मतलब क्या, जो आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. तो अगर वो ही नहीं रहा, मतलब कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं, तो मतलब उसमें से डिस्ट्रक्टर मेमोरी स्पेस को रिलीज कर देगा और वो मेमोरी की जगह खाली कर देगा. ठीक है. नाउ इट इज सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम, बट वी हैव टू यूज दिस टिल्ड ऑपरेशन. ये टिल्ड सिंबल हम लोगों को यूज करना है, which is followed by the destructor. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब भी आप डिस्ट्रक्टर यूज करोगे, डिस्ट्रक्टर के नाम के सामने, दैट इज क्लास के सामने, यू विल यूज दिस सिंबल टिल्ड. अगर ये सिंबल लग गया तो मतलब आपका डिस्ट्रक्टर हो गया. नाउ एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया जाता है. नाउ इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन अ पब्लिक पार्ट. इट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. अगेन सेम, जैसे कंस्ट्रक्टर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड, सेम डिस्ट्रक्टर भी रिटर्न नहीं करता है. जैसे कंस्ट्रक्टर पब्लिक में लिखा जाता है, वैसे डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक में लिखा जाता है. इट डज नॉट नीड टू कॉल बिकॉज इट गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली व्हेनेवर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय फ्रॉम इट्स स्कोप. जैसे जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, विजिबिलिटी नहीं रहेगी, तो मेमोरी स्पेस को वो रिलीज कर देगा कि भाई उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो रिलीज कर देगा, मेमोरी स्पेस को खाली कर देगा. ये काम कौन करता है, डिस्ट्रक्टर करता है. ठीक है ना. So it can be called explicitly also using delete operator. Operators हमने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, delete operator. ठीक है, मैनेजमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है delete operator and new operator. तो हम लोग it can be called explicitly by using this delete operator. ठीक है. It does not take any parameter. डिस्ट्रक्टर के पास कुछ पैरामीटर्स हम लोग डाल नहीं सकते. डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड. जैसे कि कंस्ट्रक्टर हमने ओवरलोड किया था ना, एक से ज्यादा फंक्शंस हमने यूज किए थे कंस्ट्रक्टर के, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ था. लेकिन डिस्ट्रक्टर, जैसे मैंने अभी बोला था कि डिस्ट्रक्टर हम एक से ज्यादा लिख नहीं सकते, सो डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड. ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन पर्टिकुलर क्लास. इट डज नॉट इनहेरिट. यस ऑफ कोर्स इट डज नॉट इनहेरिट. सिंटैक्स कैसा है डिस्ट्रक्टर का, यू विल राइट द क्लास का नाम एंड देन इन द फ्रंट फॉलोड बाय सिंबल दैट इज अ टिल्ड. ये टिल्ड सिंबल आपको बता देगा कि इट इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर ओपन किया, द कोड और द बॉडी विच यू आर राइटिंग अंडर द डिस्ट्रक्टर एंड देन द डिस्ट्रक्टर क्लोज. दिस इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स. नाउ लेट्स बिगिन विद एन. When does the destructor gets called? Destructor is automatically called जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है. डिस्ट्रक्टर को हमको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है. जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड. व्हेन अ स्कोप, दैट इज विजिबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, व्हेन अ स्कोप, द पैरेंथेसिस कंटेनिंग द लोकल वेरिएबल एंड्स. तो पैरेंथेसिस कौन सा कंटेन करता है क्लास के अंदर, डेटा मेंबर्स. ठीक है, अगर वो डेटा मेंबर्स की विजिबिलिटी अगर नहीं रही, खत्म हो गई, in that case this destructor gets automatically called. And when you call the delete operator, मतलब जो ऑब्जेक्ट बना गया था वो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देगा, मेमोरी स्पेस को फ्री कर देगा. in such cases the destructor gets called. It is asked in the viva, what is destructor, what are the syntax of a destructor, what are the syntax of a constructor, what is the difference between constructor and destructor. It is asked in the viva. ठीक है. Now let's begin with the program for the destructor. program हम लोग करेंगे डिस्ट्रक्टर के साथ. now see ये simple program मैंने यहाँ पे लिखा है. here one class I have written, the class का नाम है ratio. class का नाम है ratio. class begin हो गया. now अभी यहाँ पे मैंने फिर से ratio लिखा है. this is nothing but the constructor because class का नाम भी ratio है, constructor का नाम भी ratio. now by default it is an default constructor. it is an default constructor. ठीक है. now उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ओपन किया मैंने, उसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल दी, ऑब्जेक्ट इज बॉर्न. आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैसे डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है. तो ऑब्जेक्ट इज बॉर्न मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी. ठीक है, फंक्शन क्लोज हो गया. देन नेक्स्ट इज वॉइड डिस्प्ले. अब एक और फंक्शन यूज किया मैंने, डिस्प्ले नाम का फंक्शन यूज किया. उसके अंदर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव. ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव. आई वांट टू शो दैट ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव. मतलब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ऑब्जेक्ट है
उसके बाद में मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव, देन द फंक्शन क्लोज. Once this done, I have written the ratio again. But this ratio, it is followed by this symbol, tilde symbol. तो ये tilde symbol बताएगा this is nothing but the destructor. ये जो लिखा है मैंने ये destructor है और ये जो है ये constructor है. So destructor लिखा, उसके बाद में मैंने उसके अंदर एक statement डाल दी object dies, क्योंकि destructor का काम क्या है object को destroy करना. तो मुझे एक statement के हिसाब से बताएगा कि now there is no object, the object has been dies. Then डिस्ट्रक्टर को क्लोज किया, क्लास यहाँ पे बिगिन किया था, क्लास हैज बीन क्लोज, देन सब कुछ किसके अंदर चला, अगेन क्लास के अंदर. सो इट्स एन मेंबर डिफाइंड इनसाइड द क्लास. देन मेन लिखा, आई हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ हूम, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. क्लास का नाम क्या है, रेशियो. रेशियो लिखा मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया आर. ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल, इतना ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर्ड बाय द यूजर. तो वेरिएबल क्या बनाया, आर. सो आर, जैसे ही आर आ गया यहाँ पे, एंड रेशियो, अगेन रेशियो क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर इमीडिएटली कंपाइलर यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट इज बॉर्न स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा. देखो आउटपुट की तरफ ऑब्जेक्ट इज बॉर्न डिस्प्ले करेगा. ठीक है, उसके बाद में आर डॉट डिस्प्ले कॉल किया गया है, आर डॉट डिस्प्ले. यहाँ पे मैंने, हाँ, आर डॉट डिस्प्ले, आर डॉट डिस्प्ले कॉल किया, कंपाइलर इमीडिएटली डिस्प्ले फंक्शन के पास चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव बताएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टिल अलाइव. ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. लेकिन दिस रेशियो आर इज नथिंग बट अगेन अ डिस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने सेम प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर भी यूज किया है. तो दिस डिस्ट्रक्टर हमको कॉल करने की जरूरत नहीं, एज आई टोल्ड यू इट इज ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड. तो जैसे ही रेशियो दैट इज डिस्ट्रक्टर आ गया, तो ये आर कंपाइलर यहाँ पे जाएगा और स्टेटमेंट बताएगा कि ऑब्जेक्ट डाइज, मतलब now there is no existence of this object in a memory allocation that is free from memory now. So अभी वो जगह खाली हो गई है, that means we have called this destructor. और वो स्टेटमेंट के द्वारा आपको बता देगा it is an object type. It just for understanding purpose. आपको दिखाई नहीं देगा कि मेमोरी एलोकेशन में स्पेस कितनी फ्री हुई है और कितनी खाली है, वो तो हम बाद में चेक कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बताया कि अभी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, तो स्टेटमेंट बता देगा ऑब्जेक्ट डाइज. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम in which we have used constructor and destructor. Let's begin with another program in which I have used destructor. Let's see. I have written one program in which hello world is my class name. Hello world is my class name. Class keyword hello world is my class name. Class begin हो गया, curly braces यहाँ पे लिखा है. Now here you can see that I mentioned a public access specifier. Now it is open to everyone. It can be open to everyone. Why? Because जो डेटा मेंबर ही था वो मैंने सीधा किसके अंदर डाला है, पब्लिक के अंदर. ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड इट इज सेम एज द क्लास नेम. तो मतलब ये क्या हो गया, इट इज एन कंस्ट्रक्टर, इट्स एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है, सॉरी स्टेटमेंट लिखी है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ठीक है, किसके अंदर लिखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है. ये कंस्ट्रक्टर बंद हो गया ना. उसके बाद में मैंने फिर से हेलो वर्ल्ड लिखा, बट उसके सामने एक सिंबल लगा दिया, टिल्ड सिंबल, मतलब ये क्या बन गया है, डिस्ट्रक्टर बन गया. डिस्ट्रक्टर ओपन हो गया, उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाली, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. उसके बाद मैं डिस्ट्रक्टर क्लोज कर दिया, एक मेंबर फंक्शन बना दिया, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसमें एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करा दी हेलो वर्ल्ड. ठीक है, देन द फंक्शन क्लोज. क्लास यहाँ पे बिगिन किया था, क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया. देन नाउ हियर आई हैव रिटन इंट मेन. अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को कुछ रिटर्न ही नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे वॉइड मेन भी लिख सकती हूँ. तो यू कैन राइट अ वॉइड मेन आल्सो. तो यहाँ पे मैंने इंट मेन लिखा, दैट इज इट विल रिटर्न द टाइप ऑफ अ इंटीजर, बट कुछ प्रोग्राम हम लोग इंटीजर्स का कुछ कर ही नहीं रहा है, सो इट विल यू कैन राइट हियर वॉइड आल्सो. उसके बाद में हेलो वर्ल्ड क्लास लिखा मैंने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट है ओबीजे. obj is an object of a class hello world. now जैसे ही obj hello world आया, immediately compiler यहाँ पे जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो स्टेटमेंट लिख के आएगी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ठीक है, उसके बाद में obj डॉट डिस्प्ले किया है, तो फंक्शन के पास चला जाएगा कंपाइलर, यहाँ पे आ जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा hello world. it will print the statement hello world आया, and then the compiler को दिखेगा कि one more
एक क्लास का नाम है, दैट इज कंस्ट्रक्टर का नाम है, बट उसके सामने क्या लगा है, सिंबल टिल लगा है, तो मतलब वो डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया है। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल किया तो मतलब अगेन मेमोरी स्पेस रिलीज हो गई, वो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है मेमोरी में से, एंड देन द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड करके स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, सी दिस इज डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड करके स्टेटमेंट आया। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसमें कुछ डाउट है? अदरवाइज आई विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक इनहेरिटेंस। एनीबॉडी हैविंग डाउट इन दिस थिंग? No, ma'am. Okay, then I will start with the new topic, that is inheritance. किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? श्योर? Okay, before going to inheritance, I'll just ask the few difference between what is constructor and destructor. Tell me, what is constructor? What is constructor? Damnit, give me the answer. What is constructor? What is constructor? Neha, what is constructor? Ma'am, constructor is a function which defines the variables. Better you can say it is used to initialize an object. It is a special member function which is used to initialize an object of a class. Okay, or also you can say constructor, it is used to construct the object. Pramshu, what are the rules of constructor? Ma'am, constructor has no specific data type, and it is the same name as the name of the class. First rule is constructor का नाम वही रहेगा जो class का नाम. Second rule. Ma'am, it has no Return type. specified Okay. return type. Third Ma'am, rule. it is not called in the it is not called in Yeah, the it is automatically involved in the main function. Fourth. Karthik, what is the fourth rule? Karthik Nambiar. It constructs the initial value of data members. आई एम आस्किंग द फोर्थ, वो पहले ही हो चुका है। फोर्थ रूल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। व्हाट इज द फोर्थ रूल? भावेश। Ma'am, constructor cannot be inherited. Okay, yes, constructor cannot be inherited. Next, one more rule is there. Noel. Constructor should be private, public. Yes, the very important rule, the constructor should be written under the public. Okay, सबसे important क्लास का नाम वही, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम, और कंस्ट्रक्टर को हम लोग पब्लिक में ही लिखते हैं। अगर हम पब्लिक में नहीं लिखेंगे तो उसके प्राइवेट क्लास के जो डेटा मेंबर्स है हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंड वी कैन नॉट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू राइट इट डाउन अंडर द पब्लिक। ओके, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? भावेश, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? Viha? Ma'am, destructor. Wait, Bhavesh. Viha, tell me what is destructor? Viha, can you hear me? Okay. Yes, Bhavesh, continue. What is destructor? Ma'am, destructor is a member function which is used to delete an object. Yes, it is used to delete an object. Okay. Taksh, what is the second rule of a destructor? They execute automatically when the program ends. Yes. Third rule. Damnid. Third. A tilde sign is used to represent a destructor. Exactly. Tilde sign is used to represent a destructor. Okay. Okay. Chalo. We'll start with the new topic. That screen is visible. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Your voice is cracking. Wait, let me check. Is it okay now? Okay.
So we start with the new topic that is called as inheritance. Now it is one of the most important feature of OOPS, right? Now it's one of the most important feature of OOPS. Inheritance is an important feature of OOPS. कैसे? What do you mean by inheritance? Inheritance मतलब क्या? It is a mechanism in which a new class is derived from the existing class. In simple term, I can say it inherit the property of the previous one. That is nothing but the inheritance. Inheritance मतलब क्या? It is a mechanism in which it will make a new class from the existing class. That is called as an inheritance. It is called as an inheritance. तो inheritance होता use कब करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यू क्लास और द न्यू क्लासेस कॉल्ड डिराइव क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. मतलब एक नया क्लास बनेगा जो पुराने क्लास से, पुराने क्लास को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग क्लास और नया क्लास बनेगा उसको हम बोलते हैं डिराइव क्लास. पुराने क्लास को हम ऐसे पेरेंट क्लास ही बोला जाता है और न्यू क्लास को हम बोला जाता है चाइल्ड क्लास ही बोला जाता है. एज वेल एज child class is also called as subclass and the parent class is also called as superclass. Why I am telling you? Because it is asked in the FIB, fill in the blanks में पूछा जाता है. ठीक है? So base class भी बोला जाता है. अगर existing class है तो उसको हम base class बोलते हैं और नया क्लास बन रहा है तो उसको हम derived class बोलते हैं. तो inheritance मतलब क्या कि existing class से कोई भी नया क्लास हम बनाएंगे उसको हम बोलते हैं inheritance. Let's take an example. जैसे कि parent एंड चाइल्ड की प्रॉपर्टी, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में इनहेरिट होती है. सो पेरेंट इज एन बेस क्लास एंड चाइल्ड इज एन डिराइव क्लास. पेरेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास एंड डिराइव क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज सब क्लास. ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. से मैमल्स. अब मैमल्स बोला तो बहुत कुछ आ गया मैमल्स के अंदर से. इफ आई टॉक अबाउट द डॉग, डॉल्फिन्स, अब हर एक के फीचर्स और प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे. ठीक है, तो इट इज एन अनदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. तो वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे. इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम what is inheritance and what are the different types of inheritance for 4 marks. Now when it is asked different types of inheritance, you are supposed to draw the diagram. Along with the diagram you are supposed to define it. Along with the diagram you are supposed to define it. ठीक है, what is inheritance and what are the different types of inheritance. 4 marks के लिए हमेशा पूछा जाता है. Now let's talk about the programming part of inheritance. It is never asked in the exam programming part कि आपको इसके ऊपर प्रोग्राम पूछा गया है. Not even in the theory, not even in the last question which is based on completely programming part. 2016 में एक प्रोग्राम पूछा गया था inheritance में. That was wrong question. जो भी जिन्होंने भी attempt किया था उनको पूरा मार्क्स दिया गया था. मोस्टली अभी तक इनहेरिटेंस के ऊपर एक भी प्रोग्राम नहीं पूछा गया. सिर्फ once I have seen in the year of 2016, वो भी गलत था. Okay, so next the derived classes have all the features of the base class, right? Na, the derived classes have all the features of the base class and the programmer can choose to add a new feature specific to the newly created derived class. Now सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, why are we using an inheritance? ठीक है, why are we using an inheritance? Now let's begin an example. Let's take an example. मुझे कुछ प्रोग्राम करना है. Say for example I want to write a program on parent only. मतलब मुझे कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है कि जिसमें प्रॉपर्टी एक दूसरे की इनहेरिट होती है. अब जैसे कि if I talk about the parent and child program, I want to write a program for family. ना फैमिली के लिए प्रोग्राम मुझे लिखना है तो उसमें सबसे पहले इफ आई टॉक तो बेस क्लास मेरा प्रॉपर्टी पेरेंट बन गया. ठीक है, मैंने उसके लिए प्रोग्राम लिखा. अब मुझे चाइल्ड के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं यूज करूँ, जबकि पेरेंट की प्रॉपर्टी ऑलरेडी चाइल्ड में इनहेरिट हो रही है. बट इफ आई एम नॉट यूजिंग एन इनहेरिटेंट तो आई हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर चाइल्ड ऑल्सो. अब दो अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत क्या है, जबकि पेरेंट की प्रॉपर्टी ऑलरेडी चाइल्ड के पास है. तो व्हाट आई डू, आई राइट द प्रोग्राम फॉर चाइल्ड. तो मतलब आई हैव टू यूज अ सच टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन सो दैट कि प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में सबके प्रॉपर्टीज भी आ जाए, मॉडिफाई भी कर सकूं और प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो जाए और एग्जीक्यूशन भी फास्टेस्ट हो जाए. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज अ इनहेरिटेंस. मतलब क्या किया मैंने, पेरेंट को अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगी सिर्फ पेरेंट का तो चाइल्ड का आएगा ही नहीं. सो बेटर आई विल राइट द प्रोग्राम फॉर चाइल्ड. तो चाइल्ड का प्रोग्राम अगर मैं कर रही हूँ उसी में मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ तो अल्टीमेटली पेरेंट की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी और डिराइव क्लास मतलब चिल्ड्रंस की भी आ जाएगी. तो हो गया ना मेरा एक ही काम इसमें. सो इन दैट केस वी यूज अ इनहेरिटेंस. इज दैट क्लियर?
Idea of an inheritance is implement is a relationship. For example, mammal is an animal, right? So dog is a mammal, hence dog is an animal. तो वैसे ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम का एग्जांपल मैंने आपको बताया. So let's see the definition part. Inheritance, it is the capability of one class to inherit the property from another class. It will inherit a property from one class to another. Base class मतलब क्या? It is the class whose properties are inherited by another class. It is also called as super class. अब बेस क्लास के पास भी किसी ना किसी की प्रॉपर्टीज आई रहेगी ना, तभी तो उसको बोला गया है वो बेस क्लास है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास. डिराइव क्लास मतलब क्या, कि जो बेस क्लास से बनाया है या फिर बेस क्लासेस से बनाया है उसको हम बोलते हैं डिराइव क्लास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब क्लास. ठीक है. नाउ what are the features or the advantages of inheritance? Now the very first feature, reusability of a code. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हमको अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, I just modify my program in that. ठीक है. That is called as reusability of a code. It will save my time and efforts also. As I told you कि execution भी fast हो जाएगा, प्रोग्राम का लेंथ भी फास्ट हो जाएगा. ठीक है, कम हो जाएगा. एंड देन फास्टर डेवलपमेंट, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू एक्सटेंड. मतलब मैं उसी को डिफरेंट क्लास में भी यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे उसका कुछ फीचर्स चाहिए, कुछ मेंबर्स चाहिए, कुछ मेंबर फंक्शंस चाहिए, तो आई कैन यूज दैट इनटू डिराइव्ड क्लास, आल्सो इनटू द अनदर क्लास आल्सो. ठीक है. देन it is incapable of expressing the inheritance relationship and it is transitive in nature, which ensures closeness with the real world problems. जैसे कि अब एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि mammals का, parent child का, इसके लिए बोला गया है it is in transitive nature and it includes a real world problem. So these are some of the features or the advantages of inheritance. ठीक है. Now inheritance को access कैसे करते हैं? Now to access, as I told you, we have a scope, that is a visibility. अब हर एक की विजिबिलिटी होती है, उसके ऊपर हम डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास लिखते हैं, आउटसाइड द क्लास लिखते हैं, फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं, हर एक का तरीका अलग अलग है. सो सिमिलरली ओवर हियर यू कैन सी दैट इनहेरिटेंस को हम एक्सेस कैसे करते हैं. लेट्स बिगिन. सी एक्सेस, कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस. अब सिंपल सी बात है, अगर पेरेंट्स से चाइल्ड डिराइव्ड हो रहा है तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो किसका बनाएंगे? डिराइव्ड क्लास का. क्योंकि पेरेंट का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी. सो व्हेनेवर we want to access any of the members, in that case we always create an object of derived class. base class का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि बेस क्लास से डिराइव्ड होते हैं, तो डिराइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा. समझ में आया ना? अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा. गॉट इट? उससे बना है, बेस से डिराइव बना है, तो हम लोग इसके लिए हमेशा किसका लिखते हैं? डिराइव. आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम हाउ इट हैपेंस नाउ. So derived class can access all the protected and public member of its base class. Derived class के पास कौन सा access है? Protected and public, not a private. Not a private. See, protected is same as private, लेकिन इसके friend function को access करने के लिए permission है, इसके लिए protected बोला गया. It can access all the protected and public members of a base class. It cannot access private members of the base class. अगर वो प्राइवेट अगर उसने स्पेसिफाई किया तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज प्राइवेट मेंबर मतलब क्या? ऑथेंटिकेटेड, ओनली पर्टिकुलर बिलोंग टू दैट क्लास. वो मेंबर फंक्शंस वो पर्टिकुलर क्लास में ही एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं होगा. सी एक एग्जांपल दिया, एक छोटा सा डायग्राम दिया यहाँ पे देखो. प्राइवेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, प्रोटेक्टेड कैन बी इनहेरिटेड. चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिटेड हो सकता है प्राइवेट में. ठीक है. पब्लिक, yes it can be inherited. चाइल्ड का क्लास इनहेरिट हो सकता है. दिस इज माय बेस क्लास. ठीक है. तो प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक इनहेरिट होगा. लेट्स सी visibility mode. Visibility mode already I have explained. Let's explain over here. Visibility mode, it is the keyword which controls the visibility and availability of inherited. जैसे मैंने अभी बोला कि वो आपको बताएगा कि आपको एक्सेस है या नहीं. तो वो कौन बताने वाला है? दिस प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर. नाउ लेट्स सी. प्राइवेट मतलब it is an inherited which is given by the private visibility mode. In private inheritance, the protected and the public member of base class become private member of the derived class. So that's why private inheritance is not possible. Public inheritance,
In public inheritance, the protected member of base class become protected. In public inheritance, the protected member of class becomes a protected member of derived class, and public member of the base class becomes a public member of derived class. So we can inherit the public. Protected में in protected and public member of base class becomes protected member of derived class. दोनों मतलब public member of base class बन जाएगा and derived class protected member बन जाएगा. So protected and public we can inherit it, but private we cannot inherit. Child class उसका inherit नहीं होगा. Let's see. एक चार्ट दिया गया है सेम जो मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. See, a child class can inherit a base class in 3 ways. Now see, this is my base class, मतलब this is my super class and this is my sub class, that is a child class. ठीक है. Now see, private not inherited, become a private of a child class, become a private of a child class. Possible ही नहीं है. Protected, private not inherited, but become protected member of a child class, become a protected member of a child class. Public not possible, become a protected member of a child class, become a public member of a child class. That means in simple term में अगर मैं बोलूँ तो private को access नहीं है, सिर्फ और सिर्फ protected और public को access. अब ये कैसे पता चलेगा? When we will execute the program, तभी हमको पता चलेगा कि सच में access है या नहीं. Now let's begin with the different types of inheritance. What are the different types of inheritance? There are 5 different types of inheritance. The very first inheritance is a single inheritance. Second is multiple inheritance. Third is multi-level inheritance. Fourth is hierarchical inheritance. And fifth is hybrid inheritance. It is asked in the exam, explain any 3 different types of inheritance or explain types of inheritance for 4 marks. All the 5 inheritance you are supposed to write down with diagram with definition. Let's see each type of inheritance in detail. The first is single inheritance. Single inheritance is the one in which there is a one base class and one derived class which is come from the base class. That is called as single inheritance. Single inheritance is the one in which there is one base class and only one derived class in which the child class is inherited from the parent class. That is called as single inheritance. Okay, now see. It enables the derived class to inherit the properties and behavior of a single parent class. जैसे मैंने बताया कि A class से B class बना है, तो A class क्या है यहाँ पे मेरा, A जो है ये base class है, B क्या है derived class. मतलब जब भी एक बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास होगा तब हम उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है. Now, if class contains only 2 classes, that is one base class and other derived class, then that hierarchy is called a single inheritance. Let's see the syntax of this. How to write down the syntax? Syntax है class base class का नाम, class keyword base class का नाम, curly braces open मतलब class begin हो गया. Then I have to specify access specifier class close. Then class keyword, then the derived class का नाम. Then the derived class का नाम. क्यों? क्योंकि हम लोग ये कौन सा कर रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस के पास क्या रहता है, एक बेस क्लास रहता है और एक डिराइव क्लास होता है. तो ऑफकोर्स मतलब कितने क्लासेस हुए, 2, एक बेस क्लास और दूसरा डिराइव क्लास. लेकिन ये डिराइव क्लास किससे बना, ये बेस क्लास से. तो उसके बाद में कोलन, उसका एक्सेस स्पेसिफायर. किसका एक्सेस स्पेसिफायर, ऑफकोर्स ये क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर मतलब बेस क्लास का. तो बेस क्लास का नाम और एक्सेस स्पेसिफायर. एंड देन ये वाला डिराइव क्लास ओपन होगा, उसके अंदर के मेंबर फंक्शन, देन ये क्लास क्लोज. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. कैसे लिखोगे, क्लास बेस क्लास का नाम. एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको. सी से क्लास लिखा मैंने, बेस क्लास का नाम मैंने लिखा से पेरेंट. ठीक है. ये क्लास बिगिन हो गया, ये इसके अंदर क्लास क्लोज हो गया मेरा. ठीक है. नाम दूसरा क्लास डिराइव्ड हुआ है, दूसरा क्लास जो है डिराइव्ड हुआ है क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस है. तो मैंने लिखा क्लास कीवर्ड, देन आई हैव रिटर्न अ क्लास चाइल्ड. अब ये चाइल्ड जो है ये किससे डिराइव्ड हुआ है, पेरेंट से. तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कोलन एंड देन स्पेसिफायर आई हैव रिटन पब्लिक. अब ये चाइल्ड जो है, ये चाइल्ड किससे बना है, ये चाइल्ड बना है ये पेरेंट की वजह से. क्योंकि ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, सिंगल. और सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि जिसमें एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास. तो डिराइव क्लास किससे बनता है, बेस क्लास से. तो यहाँ पे मैंने लिखा है चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड कोलन एंड देन आई हैव टू मेंशन हियर
पब्लिक एंड द बेस क्लास का नाम। तो बेस क्लास का नाम क्या है? पेरेंट। बेस क्लास का नाम क्या है? पेरेंट। एंड देन उसके बाद में ये क्लास बिगिन हो गया, उसके अंदर उसके बॉडी मेंबर फंक्शंस, क्लास क्लोज हो गया। तो मतलब ये बेस क्लास और ये तुम्हारा डिराइव क्लास। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ पे आपको? Is that clear? Now we'll move to the next one. That is the next type of inheritance. Let's see. The next inheritance is your program on inheritance. हम एक छोटा सा program देखते हैं so that you will have an idea how to write the single inheritance. Now see. Class A. ठीक है, अब क्लास का नाम क्या है? बेस क्लास का नाम है A. The base class का नाम है A यहाँ पे. Then I have mentioned a specifier public. Can you see that? I have mentioned a specifier public. उसके बाद में int A, B. I have mentioned two data members whose data type is integer. A, B. Two data members दिए मैंने of a class A. उसके बाद में एक फंक्शन डाला है get data. अब देखो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन किया, मतलब I have just declare it. I didn't define. I have just declare, है ना? बराबर ना? यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला है तो मतलब I have just declare. I didn't define. उसके बाद में बेस क्लास को क्लोज कर दिया मैंने, देखो सेमीकोलन डाला तो बेस क्लास इज क्लोज. नाउ क्लास बी. नाउ बी मेरा ए से डिराइव हुआ है. बी क्लास इज डिराइव फ्रॉम ए क्लास, राइट? बी क्लास इज डिराइव फ्रॉम ए क्लास. कैसे पता चला? पब्लिक. बेस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या डाला मैंने? पब्लिक. बेस क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? ए. तो ये जो है ये मेरा डिराइव क्लास है. अब ये डिराइव क्लास है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया और बेस क्लास का नाम पता किया. तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं? क्लास बी, दैट इज क्लास बी इज डिराइव फ्रॉम बेस क्लास ए. क्लास बी इज डिराइव फ्रॉम बेस क्लास ए. उसके बाद में क्लास बिगिन हो गया. आई हैव यूज्ड वन डेटा मेंबर सी, उस डेटा टाइप इज इंटीजर. देन पब्लिक. दो फंक्शंस यूज किए हैं मेंबर फंक्शंस, एक है कैलकुलेट, दूसरा है डिस्प्ले. So again you can see here मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला है, दोनों में सेमीकोलन डाला है. That means only declaration part I did under this, but I didn't define. That means I am going to define this function outside the class. Why? Because I have written here semicolon. उसके बाद में now tell me how to call the member function outside the class. How we are going to call it? Yes, anyone? कैसे कॉल करते हैं हम लोग? कैसे कॉल करते हैं? अगर मुझे आउटसाइड द क्लास करना है तो कैसे कॉल करते हैं? हाउ डू वी कॉल द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास? Scope resolution operator. एग्जैक्टली, वी आर यूजिंग अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है ना? अब सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? गेट डेटा. ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड. उसके बाद में क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है यहाँ पे? ए. तो मैंने यहाँ पे लिखा ए. उसके बाद में स्कोप. स्कोप के बाद में ये क्लास का मेंबर फंक्शन, क्योंकि मैंने ये मेंबर फंक्शन किसके अंदर लिखा है? क्लास ए के अंदर. सो क्लास ए के अंदर कौन सा मेंबर फंक्शन है? गेट डेटा. यहाँ पे लिखा मैंने गेट डेटा. मेंबर फंक्शन को ओपन किया. नाउ हियर आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी. तो मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी, एंटर द नंबर ए एंड बी एंड आई एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी. उसके बाद में फंक्शन क्लोज हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मेंबर फंक्शंस फॉर दिस वन. ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगी. नाउ रिटर्न टाइप वॉइड. नाउ क्लास का नाम क्या है? बी. उसके बाद में यहाँ पे मैंने बी लिखा. देन स्कोप. स्कोप के बाद मेंबर फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेट. नाउ ये कैलकुलेट के अंदर क्या करने वाली हूँ? आई जस्ट वांट टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो इसके लिए मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी. c I already declared in this class. ठीक है, so c is equal to a plus b. हो गया, ये हो गया कैलकुलेट के अंदर. नाउ I want to display the value of c. तो ये किसके अंदर है? अगेन क्लास b के अंदर है. सो अगेन इसका रिटर्न टाइप क्या है? मेंबर फंक्शन का वॉइड. तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा. सिंटैक्स कैसा है ना? रिटर्न टाइप क्लास का नाम, स्कोप एंड मेंबर फंक्शन का नाम. तो रिटर्न टाइप वॉइड है, क्लास का नाम b है, स्कोप ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम है यहाँ पे डिस्प्ले. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्प्ले. काउट एडिशन ऑफ टू नंबर इज, ये स्टेटमेंट आएगा एंड देन काउट c लिखा है.
उसके बाद में ये फंक्शन बंद हो गया। कौन सा फंक्शन बंद हो गया? डिस्प्ले। यहाँ पे देखो ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज हो गया। देन क्लास को मैंने क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास यहाँ पे बंद है, ये वाला भी बंद है। मतलब ये सारी चीजें किसके अंदर चल रही है? क्लास के बाहर। देखो ये पब्लिक लिखने की वजह से मैंने ये सारी चीजें क्लास के बाहर है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखती तो मुझे डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर में लिख सकती हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइवेट के अंदर लिख नहीं सकते, वी कैन राइट इट, बट इनहेरिट नहीं होता था फिर, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये पब्लिक लिखा है। देन मेन फंक्शन, नाउ सी, अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? क्लास का। नाउ यू कैन सी हियर क्लास बी जो है ए से डिराइव्ड हुआ है। अगर मैं ए का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं ए के सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर पाऊंगी, क्योंकि ए की प्रॉपर्टी बी में इनहेरिट हुए, बी की प्रॉपर्टी ए में इनहेरिट नहीं हुए, राइट ना? बी की प्रॉपर्टी ए में इनहेरिट नहीं हुई है। इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल ऑलवेज मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, क्योंकि अगर मैं बी ले रही हूँ तो मुझे बी की प्रॉपर्टी बी के जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुए ए से, वो और प्लस उसके खुद के, ये दोनों चीज में एक्सेस कर पाती हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? क्लास बी का। और बी का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्मॉल बी। कैपिटल बी इज माय डिराइव्ड क्लास का नाम and small b is my object or the variable of this particular class. Is that clear? मैंने derived class का object क्यों बनाया? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Then clear screen डाल दिया. Now I have to call the member functions. ठीक है? अब मुझे member function को call करना है. Now here you can see that there is one confusion. किसी ने नहीं पूछा मुझे कि मैम आपने यहाँ पे get data और ये get data, sorry, okay. I'll explain that next program. Okay, fine. So b dot get data, मैंने ये first function को call किया through the class b के object से. See, you can see that कि जबकि ये object b class का है, लेकिन मैंने ये get data function वो जो है वो class a का है, फिर भी मैं access कर पा रही हूँ. Why? Because इसकी property इसमें inherit हुई है, that is class a की property class b में. So that's why I can access the member function as well as the data member of class a. But if I am writing the object of class A, then it won't be able me to access the class B का proper data members and the member function. So b dot get data, जैसे कंपाइलर के पास b dot get data आएगा, कंपाइलर immediately यहाँ पे आएगा get data function के पास and it will ask to enter the value for a and b from the user. यूजर ने a और b की वैल्यू डाल दी, देखो 3 और 5. उसके बाद में it has written that b dot calculate, b को ऑब्जेक्ट b से कैलकुलेट मेंबर फंक्शन को कॉल किया गया है और कैसे एक्सेस किया है? बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. कैलकुलेट जैसे कंपाइलर ने कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे आएगा कैलकुलेट के पास, इट विल ऐड द टू नंबर्स एंड इट विल स्टोर द वैल्यू अंडर दिस सी वेरिएबल. देन b डॉट डिस्प्ले, कंपाइलर विल गो टू दिस फंक्शन, it will add the number and it will display the result c. See, addition of two number is 8. ये आपको दिखाई देगा. Is that clear how to write the inheritance program? ठीक है? Now, the second type of inheritance is a multiple inheritance. Multiple inheritance. What do you mean by multiple inheritance? Multiple inheritance is the one in which derived class is inherited from the two base class. Derived class is class C is a new class which is derived from two base class. मतलब दो base class से एक नया class बना गया है, उसको हम बोलते हैं multiple inheritance. कितने base class है यहाँ पे? See, class A and class B. और बना कितना? एक ही class. मतलब दोनों को मिला के एक class बनाया गया है. दोनों को मिला के एक class. Is that clear? See, class A, class B. दोनों को कंबाइन करके एक क्लास बनाया गया, इसके लिए इसको बोला गया है मल्टीपल इनहेरिटेंस. दैट इज व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, दैट इज क्लास सी जो है, इट टेक्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोथ क्लास ए एंड क्लास बी, देन इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ दिस. नाउ क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम, सी हियर, क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम, एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास 1 नेम एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास 2 नेम एक्सेस स्पेसिफायर. अब यहाँ पे दो क्लास के नाम क्यों आए? क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है. तो डिराइव, तो ये जो सी है ये किससे डिराइव हुआ है? ए और बी. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो क्लास के नाम आएंगे.
तो मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्लास सी मेरा डिराइव क्लास है, क्लास कीवर्ड कोलन पब्लिक, क्लास 1 का नाम था ए, कॉमा अगेन एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक कोलन एंड देन क्लास 2 का नाम बी, मतलब ए और बी मेरा बेस क्लास है और सी मेरा डिराइव क्लास है। ऐसे लिखूंगी मैं, शो यू क्लास सी, ठीक है। उसके बाद में कोलन एंड देन पब्लिक बेस क्लास का नाम क्या है मेरा ए, ये हो गया, एंड देन कॉमा देन अगेन पब्लिक देन बी एंड देन ये मेरा डिराइव क्लास का बिगिन हो गया फंक्शन। सो यू कैन सी हियर क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम पब्लिक ए एंड पब्लिक बी, मतलब ये दोनों जो है मेरे बेस क्लास है और ये जो है ये मेरा डिराइव क्लास है, मतलब ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कैसे रीड करते हैं, C is derived from whom, from A and B, so it is understood that A and B is my base class and C is my derived class. Is that clear? Now access specifier, then the curly braces open, curly braces close, जो भी member function इसके अंदर लिखोगे वो आपको mention करना है, ठीक है। Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Now let's begin with the next program, that is a multiple inheritance. I'll show you how to write the program on multiple inheritance. Now here you can see that what I have done, I have entered the 2 marks and I have entered the sports का marks. रोल नंबर डाला है मैंने किसी स्टूडेंट का, 2 marks मैंने एंटर किए है एंड स्पोर्ट्स के मार्क्स डाले, तो स्पोर्ट्स के मार्क्स और 2 मार्क्स सब्जेक्ट्स के उसको एडिशन करके एवरेज करके प्रिंट किया है। Now let's see how we'll display that program. Okay, so see here you can see that my class name is student. Now class name is student, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि I am going to do the program for student, class name student, class open किया, that is base class का नाम है student। उसके बाद में I have used specifier protected, जैसे कि बोला था प्रोटेक्टेड और पब्लिक हम लोग ये 2 चीज ही इनहेरिट होते हैं। सो प्रोटेक्टेड लिखा है मैंने, रोल नंबर M1 M2 these are my 3 data members of class student। उसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा, एक्स्ट्रा आ गया है। देन आई हैव रिटन अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन void गेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने void, ये जो है एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है। void get is my function in which I am going to enter my roll number and I am going to enter my marks for M1 and M2। So over here you can see that I have entered the roll number, then I have entered a 2 marks that is M1 and M2। फिर ये फंक्शन ओपन हुआ था गेट नाम का, फंक्शन क्लोज हो गया। ये क्लास ओपन हुआ था, ये क्लास क्लोज हो गया। देन सेकेंड क्लास मैंने बनाया स्पोर्ट्स नाम का, आई हैव यूज्ड सेकेंड क्लास स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स का मार्क्स एंटर करने वाली हूँ। सो हियर अगेन क्लास ओपन हो गया, देन एक्सेस स्पेसिफायर आई मेंशन प्रोटेक्टेड, one data member SM is nothing but my one of the variable which is a
sport marks, ठीक है, whose data type is integer. Then access specify public. एक और फंक्शन बनाया get one ताकि मैं sport के मार्क्स एंटर कर पाऊँ. So get one फंक्शन बनाया, फंक्शन ओपन हुआ, in that I have entered the sport marks, C in sport marks. Then फंक्शन को क्लोज किया, ये क्लास ओपन किया था स्पोर्ट्स का, क्लास बंद हो गया. तो अभी तक आपको ये पता चल गया रहेगा कि मैंने दो डिफरेंट क्लासेस बनाए. मतलब अगर मैं मेरे मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायग्राम के साथ अगर मैं रिलेट करूं तो ये मेरा क्लास ए है और ये मेरा क्लास बी है. अब ये मैं बनाने वाली हूँ क्लास सी, ठीक है. नाउ सी, अब क्लास सी मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, क्लास कंबाइन, दैट इज डिराइव क्लास. तो क्लास ए और बी से सी बना था यहाँ पे, राइट. ये जो है ना, ये क्लास ए और बी से सी बना था. नाउ तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, कंबाइन. कंबाइन क्लास डिराइव क्लास बना है. किससे बना है, पब्लिक स्टूडेंट और public sports. So I can see that it is nothing but the multiple inheritance. Now in that what I have done, I have to calculate total and average. So मैंने data member specify किया, total and average. Then public access specifier, एक display नाम का function use किया. In that I have calculated the total, that is marks 1 plus marks 2 plus sport marks. Then I have calculated average, that is total divided by 3. Then count, roll number print किया. देन एवरेज प्रिंट किया और टोटल भी प्रिंट होगा, यहाँ पे मैंने वो डाला नहीं है. देन ये फंक्शन बंद हो गया, क्लास बंद हो गया. अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करना है. अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ये डिराइव क्लास का. अब डिराइव क्लास का नाम क्या है, कंबाइन. सो आई हैव रिटन हियर कंबाइन और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बनाया CO. नाउ CO के थ्रू आई विल कॉल द ऑल ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ दिस two different classes as well as the derived class. So combine CO. CO is my object. So CO dot get. CO dot get is the my first member function of a class A, that is student का. तो इसके अंदर मैं क्या एंटर करने वाली हूँ, रोल नंबर और मार्क्स. सो सी, जैसे कंपाइलर यहाँ पे आ रहा है गेट फंक्शन में, कंपाइलर यहाँ पे आएगा. ही विल आस्क यू टू एंटर द रोल नंबर फ्रॉम द यूजर एंड मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2. ठीक है. देन CO dot get one. CO dot get one जैसे ही कंपाइलर ने ये ऑब्जेक्ट को कॉल किया, बी मेंबर फंक्शन को, immediately it will go to the second class, that is sports class के पास जाएगा and will take the value from the user sport का marks. Then CO dot display, again compiler will come to the derived class और वहाँ पे वो M1, M2, SN की marks लेके total calculate करेगा. Then it will calculate the average also and then value store हो जाएगी और display भी उसी में किया गया है, तो मुझे अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है. सो काउंट, रोल नंबर, एवरेज और टोटल की वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा. सी, ये वैल्यूज आते हैं. ये दो रोल नंबर आपने डाला है 12, दो मार्क्स डाल दिए 12, 34, स्टेटमेंट 45 हो गया एंड ये आपके टोटल आ जाएगा. स्पोर्ट का मार्क्स है 45. सो रोल नंबर 12, 91, 30, 30.33, ये आपका आउटपुट है. इज दैट क्लियर, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस. Now, multi-level inheritance. Now, what do you mean by multi-level? Multi-level inheritance मतलब क्या? Multi-level inheritance मतलब एक बेस क्लास से दूसरा डिराइव हुआ, दूसरे डिराइव से तीसरा डिराइव हुआ, तीसरे डिराइव से फोर्थ डिराइव हुआ. That is called as multi-level inheritance. That is called as multi-level inheritance. Is that clear? Now see. It is the inheritance hierarchy wherein subclass acts as an base class for other class. जैसे मैंने बोला कि क्लास A ने क्लास B डिराइव किया, क्लास B ने क्लास C, क्लास C ने क्लास D, क्लास D ने क्लास E. So that is called as multi-level. It is implemented by defining at least 3 classes. In multi-level inheritance, there is one base class and remaining 2 is a derived class. That is called as multi-level inheritance. Let's see the syntax of this. Now see. Class A is my base class, class B is my derived class. अब ये डिराइव किससे बना है, ऑफ कोर्स क्लास A से, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पब्लिक A. नाउ अगेन क्लास B से क्या बना, क्लास C. अब ये क्लास C किससे बना है, क्लास B से, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक B, बिकॉज ये स्टेटमेंट हम कैसे रीड करते हैं पहले ही बता चुकी हूँ. C is an derived class who is derived from base class B. B is an derived class who is derived from base class A. तो मतलब C के लिए B base class बन गया और B के लिए A base class बन गया. तो मतलब मैं अगर इसे वर्टिकली लिखूं तो ऊपर A आएगा, उसके नीचे एरो B, उसके नीचे एरो C, मतलब A से डिराइव हुआ B, B से डिराइव हुआ
C. तो C के लिए बेस क्लास बन गया B, B के लिए बेस क्लास बन गया A. So this is a syntax of the declaration of multi-level inheritance. जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट से टेस्ट रिकॉर्ड एंड टेस्ट रिकॉर्ड से रिजल्ट. नाउ व्हाट यू विल डू, you will write down the program for this multi-level inheritance का. ठीक है, this is an homework for you people. In the next lecture I'll check. स्टूडेंट से डिराइव हुआ है टेस्ट रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड से डिराइव हुआ है रिजल्ट. इसके लिए आपको एक प्रोग्राम करना है एंड यू विल डू इट. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज एन हाइब्रिड इनहेरिटेंस. नाउ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. Inheritance hierarchy that reflects any legal combinations of other four types of inheritance, that is called as hybrid. Hybrid मतलब क्या? Combination of all of the other inheritance, that is A से B और C derive हुआ और B और C दोनों को मिला के D derive हुआ, तो मतलब उसको बोला जाता है hybrid. The method of combining any two or more forms of inheritance in single form is called as hybrid inheritance. See, जैसे कि ये स्टूडेंट से टेस्ट रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड से रिजल्ट, स्पोर्ट्स से रिजल्ट. अगर मैं अपने सिंपल टर्म में बताऊँ तो ऐसे आता है. ये ए क्लास से डिराइव हुआ बी और सी, और सी बी और सी से डिराइव हुआ डी. तो मतलब ये चारों ए से बी, ए से सी और बी से मिला के डी, लेकिन इन चारों को मैं कंबाइन करूँ तो ये बन जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस. दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम दिया गया है अच्छे से. ठीक है ना. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सिंटैक्स ऑफ दिस, क्लास ए क्लास बी पब्लिक है, क्लास सी क्लास डी. नाउ सी क्लास बी जो है डिराइव, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, क्लास बी किससे बना था? ए से, तो यहाँ पे लिखा मैंने पब्लिक है. क्लास सी, अभी क्लास सी अलग है, क्लास सी क्लास डी किससे बना? पब्लिक बी और पब्लिक सी से, मतलब बी और सी से डिराइव हुआ है. तो ये बी और ये सी से क्या डिराइव हुआ? डी. सो दैट इज नथिंग बट द hybrid inheritance. And the last type of inheritance is nothing but the hierarchical inheritance. Hierarchical मतलब क्या? In which one base class से एक से ज्यादा derived class हो रहे, in that case that is called as hierarchical inheritance. Hierarchical मतलब क्या? In which from more than one base class two or more derived class has been used, in that case it is called as hierarchical. तो यहाँ पे एक base class student है, उससे derive हुए arts, science and commerce. So it is a kind of an hierarchical. Hierarchical inheritance is a method of inheritance where one or more derived classes is derived from common base class. That is called as hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. समझ में आया? Is that clear? So 5 different types of inheritance कौन सा है? Single inheritance, multi-level inheritance, then hierarchical inheritance, hybrid inheritance, और एक और inheritance कौन सा है? एक और inheritance कौन सा है? मल्टी लेवल. और एक और कौन सा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस. सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड. These are the 5 different types of inheritance and each inheritance has its own diagram. ठीक है? Is that clear? कुछ यहाँ पे डाउट है अभी? Any doubt till here? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we'll stop here and we'll begin with the inheritance का ambiguity and कंस्ट्रक्टर के साथ, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ ये इनहेरिटेंस क्या क्या एरर देता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी यहाँ तक सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है, उसके अलावा इनहेरिटेंस के सिंटैक्स क्या क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली है. ठीक है. सो योर टास्क इज टू write down the program for that one. Which one? Multi-level hierarchy के लिए आपको प्रोग्राम करना है. You will show it to me. Next lecture में I'll see the program of that multi-level hierarchy. ठीक है. यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, right? Okay then. We'll meet in the next. हाँ बोलो.
आपने जो गूगल क्लासरूम पे C++ का डाला है ना नोट्स, वो ओपन नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट वाला टॉपिक का डाला है वो क्या? हाँ हाँ, प्राइवेसी एरर आ रहा है। अच्छा ठीक है, लिंक भेजा है क्या मैंने कि पीडीएफ भेजा है? नहीं, लिंक है। अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी सेकंड वाला ओपन हो रहा है? कंस्ट्रक्टर वाला भेजा वो ओपन हो रहा है? कंस्ट्रक्टर वाला नहीं आया आई गेस गूगल क्लासरूम पे। ओके ओके ठीक है, मैं वो आज भेज देती हूँ। वैसे भी हमारा ये फिनिश हो गया है, सो आई विल सेंड दैट आल्सो, ठीक है। ओके मैम, और थैंक यू। हाँ, नो सिद्धेश, रेड्यूस नहीं हुआ है। यस, आई वांट टू टेल यू, सीएस के लिए कुछ भी पोर्शन रेड्यूस नहीं हुआ है, ओके। सो सीएस के लिए सब कुछ वही पढ़ना है, जो भी जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सारा सब कुछ सीएस में आने वाला है। देयर इज नो रिडक्शन इन सीएस, ओनली आईटी है, बाकी सब कुछ सीएस में आने वाला है। अभी तो कोई चांसेस नहीं है कि आपका सिलेबस रेड्यूस होगा। यस वेदांत, क्या हो गया? क्या हुआ वेदांत, व्हाट हैपेंड? I have paused my screen dear. मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ फिलहाल, because I have finished my topic. Okay? अभी जो मैंने पीपीटीज बनाए वो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रही हूँ, ओके? और जो पहला वाला है उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजती हूँ, ओके? वर्कशीट्स जल्दी जल्दी अगर टाइम हो तो जल्दी जल्दी फिनिश करो, सो दैट फोर्थ और फिफ्थ वर्कशीट में दे सकूँ, क्योंकि फर्स्ट वैसे ही हमारा ऑलरेडी फर्स्ट वाला हो गया है, ऑब्जेक्ट्स आई गेस। तो अगर टाइम हो तो आप लोग फर्स्ट वाला वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो, इफ यू हैव अ टाइम, अगर कुछ बाकी चीजें नहीं चल रही है तो, ओके? इज दैट क्लियर? चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बोलो वेदांत, क्या हुआ? एनी डाउट और shall I end? Okay, I'll end the meeting. चलो बाय।